السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ مذاکرات کا راؤنڈز تو بہت خوش آئند رہا اور بہت اچھی توقعات بھی رکھی جا رہی تھیں، لیکن تمام اطراف سے نہیں۔ ابھی بھی یہ کہنا مشکل ہے اور ہم اس کشمکش میں مبتلا ہیں، اور ہم اپنے معزز شرکا کا رخ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ یہ مذاکرات کامیاب کہیں یا ناکام کہیں۔ ایک طرف تو اس بات پہ کہتے ہیں کہ اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ الیکشنز تو ایک دن میں ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ وزیر جو سیکرٹری دفاع تھے اور جو وزارت دفاع کی جو رپورٹ تھی وہ اس حوالے سے کچھ اسی طرح کی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایک ہی دن انتخابات کروا لیں۔ تو ماشاءاللہ سے اس جو رپورٹ ہے اس کے اوپر تو تمام لوگ ایک پیج پر آ گئے، اور مزے کی بات ہوتی ہے جو وزارت دفاع کی تمام رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر تمام لوگ ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایک دن کون سا دن ہوگا، اور 14 مئی سے پہلے جو 3 اسمبلیز ہیں جو ڈیزالو نہیں ہوئی ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے وفد نے یہ مطالبات رکھے، اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، بلکہ وزیر قانون جو اس حکومتی وفد کا حصہ تھے، مذاکراتی وفد کا، وہ تو یہ اس حد تک کہتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے اس حد تک کہا کہ کوئی بندوق کے زور پر تو مذاکرات اب ہم سے نہیں ہو سکتے نا، ہم سے کوئی زبردستی تو نہیں کی جا سکتی ہے مذاکرات کے اوپر، گن پوائنٹ پر تو بات نہیں منوائی جا سکتی ہے، اور 14 مئی تک اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے اوپر حکومتی وفد اب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہنے کو تیار ہے کہ اگر 90 دن تو آلریڈی چونکہ گزر چکے ہیں، تو اگر اس میں کوئی الاؤنس کرنی ہے تو ہم ایک دفعہ ون ٹائم کوئی ترمیم کر لیں گے آئین میں تمام کے ساتھ مل کر، اور قومی اسمبلی بھی واپس آ جائیں گے تاکہ یہ آئینی ترمیم ہو پائے۔ کیونکہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تھا، پھر اپنی اس بہت بڑے ایک ڈیسیشن پر، بہت بڑا ایک، آپ اس کو یو ٹرن ہی کہیں گے بیکاز آئی ایم شارٹ آف اے بیٹر ورڈ، پی ٹی آئی نے اپنے اس فیصلے کے اوپر ری تھنک کیا تھا اور اس کے اوپر دوبارہ یہ کہا تھا کہ اب ہم اسمبلیز واپس آ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ کے لیے تو یہ آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے کہ 90 دن اس دفعہ تجاوز کر گئے۔ وہیں دوسری طرف عمران خان صاحب، اب یہ ہے کہ ان کے ٹانگ کے پرابلم کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو خبردار کیا ہے اور آرام کا مشورہ دیا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی جو عدالتی پیشی ہے اس کے اوپر جانے سے قاصر ہیں اور وہ اس دفعہ نہیں جا پائیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر بڑے تنقید کے نشتر بھی برساتی بھی نظر آتی ہیں، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، وہ بھی ہم ڈیورنگ دا کورس آف پروگرام چلائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے حالیہ انٹرویو میں تھوڑے عدالت کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹیمپٹ وغیرہ کے معاملات کرنے ہیں تو ہم کب تک انتظار کریں گے، کریں بسم اللہ کریں کنٹیمپٹ کی۔ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے یہ سنیے گا اس حوالے سے، فوری طور پہ پھر اپنے گیسٹ کا رخ کرتی ہوں۔ دیکھیے جی، سپریم کورٹ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں، سپریم کورٹ کو اس کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے جو آئین کہتا ہے۔ اس کے بعد کیا گورنمنٹ مانتی ہے نہیں مانتی، کنٹیمپٹ کرتی ہے، وہ اس کے بعد پاکستان کی قوم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جی ناظرین، پاکستانی قوم نے سپریم کورٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہ، ہمارے ایمبٹ میں، ہمارے اختیارات میں اگر آپ نے آنے کی کوشش کی تو پارلیمنٹ بھی اس کا بھرپور جواب دے گی۔ یہ ایک تصادم کی صورتحال اور کیفیت یقیناً خطرناک ہے۔ تمام معاملے پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو زیادہ پریسنگ ایشوز ہیں یقیناً وہ مہنگائی کے ہیں، عام عوام کے مسائل کے ہیں، اس کے اوپر انفارچونیٹلی کسی کا دھیان نہیں ہے، اور ان کے اوپر بات بھی ہم زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ زیادہ تر جو میڈیا اٹینشن ہے وہ انہی طرح کے معاملات میں چلی جاتی ہیں۔ ان تمام معاملوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شرکا موجود ہیں، فوری طور پر ان کا رخ کرتی ہوں۔ بہت پرٹیننٹ اور ڈیکوریٹڈ گیسٹ پینل ہے ہمارا۔ سائرہ بانو صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں جی ڈی اے سے، ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ، اور اپنے بے باک تقاریر کے لیے آج کل بہت مشہور ہیں اور جانی جاتی ہیں۔ ویلکم سائرہ صاحبہ، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ شاہ اویس نورانی صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے تمام تر پرسپیکٹوز کے لیے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں آپ، اور جے یو آئی پی جمعیت علماء پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت ایک ڈیکوریٹڈ اور آئیڈ سے اے ویری پرٹیننٹ وائس فرام دا گورنمنٹ، جہاں پر آپ اپنے کیلکولیٹڈ لیکن بہت بے باک اوپینینز تمام تر معاملات پہ رکھتے ہیں، اور بہت ان کو برملا طور پر ان کا بیان بھی کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت خوش آمدید شاہ صاحب، تھینک یو فار گریسنگ دا شو۔ اور ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں آپ، ویری سیزنڈ پولیٹیشین، بہت سارے معاملات کو فرسٹ ہینڈ بھی دیکھتے رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ نے عمران خان صاحب کے کال پر لبیک بھی کہا ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید شیخ صاحب، آپ بھی بڑے ایک ریزنیبل اور ریشنل کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب مسکرا بھی رہے ہیں، شاہ صاحب میں آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بھی جانتی ہوں، لیکن اور وقاص صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ کہ آئی گو ٹو دا لیڈی فرسٹ، سائرہ بانو صاحبہ۔ عمران خان صاحب تو خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی ٹویٹ بھی دکھائی جائے جس میں وہ اس پریشانی کا برملا اظہار کر رہے ہیں،
اور وہ مہنگائی کے اوپر ناظرین بہت پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں مہنگائی پر قابو پانے کو تو تبدیلی حکومت کے جواز کے طور پر پیش کیا کرتے تھے, اب مہنگائی پر قابو پانے کے بجائے انہوں نے معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتار کر اور آئین و قانون کو پیروں تلے روند کر محض اپنی کرپشن پلس منی لانڈرنگ کے حوالے سے NROs حاصل کیے ہیں تاکہ آج جنگل کا قانون ہی پاکستان کا مقدر ٹھہرے. ساتھ انہوں نے ایک اس میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ اٹیچ کی ہے اور جس میں وہ کہتے ہیں رفلی 9 and 10 10 میں سے 9 پاکستانی انفلیشن سے, مہنگائی سے شدید سٹریس میں مبتلا ہیں. سائرہ صاحبہ جی, یہ بات صحیح ہے کہ اتنا ہی سٹریس ہے اور اس کے اوپر پھر اس کا حل کون کرے گا؟ عمران خان صاحب نے کرنا ہے, حکومت کے اوپر کرنا ہے, عوام کہاں دیکھے؟ انہوں نے اب جیسے ٹویٹ میں کہا, اور یہ جو پچھلے 1 سال سے جب یہ سارا رجیم چینج کا جو ایک شروع ہوا تھا, تو جو بلاول بھٹو صاحب نے ریلی سندھ سے لے کر آئے تھے, مہنگائی مکاؤ مارچ, اور اس وقت سارے یہ, اور سوری مطلب ان لوگوں سے زیادہ جو شور شرابہ کیا تھا وہ ہمارے اینکر حضرات نے کیا تھا, جو کہ یوٹیلیٹی سٹور بھی چلے جاتے ہوتے تھے اور اس کے بعد پیٹرول پمپ پر بھی چلے جاتے تھے. پھر ہماری خواتین اینکر اتوار بازار بھی چلی جاتی تھی اور وہاں پر جا کر وہ ساری وہ پیسوں کا اور جو نرخ نامے تھے وہ دیکھتی تھی. آج کل ابھی سب سوئے ہوئے ہیں, ایسے لگ رہے جیسے ملک میں مہنگائی ہے ہی نہیں یا غریب عوام کو اگنور کیا ہوا ہے. ویسے تو 75 سال سے اگنور کیا ہوا ہے. مطلب میں نے تو ظاہر ہے جب سے تھوڑا شعور آیا اور یہ ملک کے حالات دیکھنا شروع ہوئے, میں نے تو کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں دیکھی کہ جس کا پرٹیکولر جو پورا جو کنسرن ہو وہ عوام کے اوپر ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب کی بھی کوئی کنسرن نہیں تھی عوام کے اوپر؟ آج تو وہ بطور اپوزیشن کے تھوڑے جو جس طرح احساس پروگرام کے اور اس قسم کے یہ کہ ان کی سوچ بہت اچھی تھی, تھوڑے انہوں نے کام وغیرہ کیے, مگر جی پناہ گاہوں کا یہ وہ, لیکن اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ بجائے کہ قوم کو بھکاری بنانے کے, کہ آپ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے, پروگرام ہے کہ لائنوں میں لگی ہوئی خواتین آپ 1000 2,000 دے رہے ہیں, کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں نا کہ لوگوں کو آپ روزگار مہیا کریں, کچھ ایسا وہ کمائیں. وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہ لاکھوں اربوں کی جو بھی امداد آتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے وہ آپ ایسے ہی بانٹ دیں اور وہ حقداروں تک پہنچتی بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان ہے کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ آٹا اسکیم کی میں 20-22 ارب کی کرپشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ فگر تھوڑا سا کم بتا گئے, میرے حساب سے 20-22 سے زیادہ کی ہے. اچھا, مریم اورنگزیب صاحبہ تو فوراً ٹویٹ کر رہی تھی کہ نہیں بہت ٹرانسپیرنسی سے. اچھا, تو وہ انہوں نے جا کر دیکھا ہے, کسی کو یقین ہے, کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز, بھلے وہ سیلاب کی امداد ہو, زلزلے کی اس کی امداد ہو, یہاں پر تو ہار بھی غائب ہوتے رہے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر, اور یہ ساری چیزیں فنڈ وغیرہ کی یہاں ہو سکتا ہے. گورنمنٹ بھی تو گھڑیاں گنوا رہے ہیں خان صاحب کی, وہ کہتے ہیں وہ گھڑیاں بھی ہیں, گھڑیاں بمقابلہ ہاتھ. اب وہ گھڑی ان کو خدا جانے گھڑی کیوں یاد آ رہی ہے. اب تو سنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی گم ہو گیا, شکر ہے گم ہوئے, ہمارے سندھ میں تو جل جاتا ہوتا ہے. یہاں بھی جلتے تھے وہ, کوئی پاور پلانٹ کے وہ جو تھے آپ کو یاد ہوگا, اس کے کچھ وہ سارے ہمارے ادوار میں جلتے رہے ہیں ان کے ریکارڈز بھی. جی شاہ صاحب آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیے. مریم نواز صاحبہ کی بات تو میں ویسے شیخ صاحب کو سناؤں گی, لیکن شاہ صاحب پہلے بھی چونکہ مسکرا رہے تھے, تو یہ فرمائیے گا سر ابھی کیا معاملہ پھر بنے گا؟ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں عوام کو کہ سپریم کورٹ آگے بڑھے, عوام ان کے ساتھ ہیں اور تمام تر جو شر پسند عناصر ہیں اس سے تحفظ کرے گی عوام سپریم کورٹ کی. شکریہ بہت. میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے لاسٹ مومنٹ پہ گیس تبدیل یہ مجھے آپ نے بڑی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے, اور مجھے جو ہے نا اتہاسی گفتگو کرنی پڑے گی. یہ آپ کا میرا خیال ہے پیار کا کوئی پرانا تعلق ہے شیخ صاحب کے ساتھ جس وجہ سے. جی بالکل بھائی ہے میرے. ہاں, تو اب آپ نے اچھا پیار سے گفتگو کرنی پڑے گی, ورنہ وہ چھریاں کاٹے تیز کی ہوئی تھی شاہ صاحب نے. نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نہیں پیار سے ہی, ہم انشاءاللہ آپ کے پیار میں مزید اضافہ کریں گے, آپ کی دوستی میں بھی اضافہ کریں گے, اور ہم چاہتے ہی یہی ہے کہ اگر جو اتنا پیار ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی اترنا چاہیے. اچھا میں شاہ صاحب گزارش ہے آپ پلیز اگر آئی تھنک ہینڈز فری اتار دیں اپنا, آپ کی آڈیو ٹھیک ہو جائے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو عرض کیا نا, جو آپ کو بتایا انہوں نے کہ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اپنا کہ ہم
जो जो नेचुरल करप्शन जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नीचे निचली लेवल पे होती है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो वो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने नहीं करी है, ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हमेशा से होती है और होती आ रही रहती है। तो वो उन्होंने जो बात की है वो अपनी जगह है। दूसरी बात आपने फरमाया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने फरमाया वो क्या था? मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अर्ज था शाह साहब के सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कंटेम्प्ट में उड़ाए, बिल्कुल जिनको उड़ाना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं अवाम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के तहफ्फुज के लिए, अगर कोई उनके ऊपर कोई 14 इन्होंने 1 मई को अपना जलसे निकाले थे मजदूर के लिए। देख लें आप कितनी लोग पीटीआई के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। इस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग निकलने लगे, सुप्रीम कोर्ट तो खुद पोलिटिसाइज हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए क्या पेशरफ्त करेगी? आप खुद देखिए, जितने भी जजेस हैं माजरत के साथ, जितने भी अहबाब जो इस वक्त मौजूद हैं बेंचेस एंड बार्स के अंदर, आप ये देखें ना कि ये एक ग्रुप ये कहता है कि ये फलानी जमात से उनका ताल्लुक है, दूसरा ग्रुप ये कहता है कि इनकी जमात से ताल्लुक है, तीसरा ग्रुप कहता है ये फलानी जमात से ताल्लुक है। मगर इस 22 करोड़ अवाम के लिए इंसाफ और अदल का कोई निजाम नहीं है। आप ये बताएं, देखें पिछले टेन्योर में साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार थे, उससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। 72 लाशें कराची शहर में 12 मई को गिरी। 18 अप्रैल को 8 वकीला ताहिर प्लाजा के अंदर जलाए गए। बल्दिया टाउन के अंदर 300 लोगों को केमिकल फेंक के आग लगाया गया। ना इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दिया, ना साकिब निसार ने फैसला दिया। लाखों केसेस पेंडिंग के अंदर हैं। और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी XYZ हो, जितने भी लोग जजेस हैं, जितने भी, कोई भी अवाम के फेवर में कोई फैसला नहीं आता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हाँ। अदल का निजाम कमजोर है। एक साहब आए पिछले दिनों, जो चारों इतवार में आप मार्शल लॉ को उठा के देख लीजिए, अयूब के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, उसके बाद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को उन्होंने इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने अंदर। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ जो सेमी मार्शल लॉ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कराया। 2/3 मेजोरिटी के वज़ीर आज़म यहाँ से घर भेज दिए जाते हैं। तो ये कौन सा अदल का निजाम है? इतना ताखीर का जो निजाम है, ये भी तो जुल्म है कौम के साथ। 22 करोड़ अवाम किसकी तरफ देखेगी? ये तो आपने जेनेरिक गिला किया जी शाह साहब, आपने जेनेरिक गिला किया, आपने माजी के भी बुरे फैसले गिनवाए, जहां इंसाफ ना मिला वो भी आपने गिनवाया। लेकिन ये बताइएगा कि फिर इस वक्त ये जो महंगाई की शरह है, इसमें तो कोई इनकारी नहीं है ना अभी देखिए महंगाई की शरत इस चीज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इसमें मैं आपकी लेकिन शाह साहब आपसे अर्ज ये है कि एटलीस्ट सब अच्छा है और सब बड़ा खूबसूरत है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज नॉट एज गुड एज इट इज सपोज्ड टू बी। बट मैं समझता हूँ वक्त लगेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कम से कम जो लोग सुबह उठ के ये सोचते थे मुल्क डिफॉल्ट कब होगा, मुल्क डिफॉल्ट कब होगा, अच्छा ये पीटीआई के ऊपर आप कह रहे हैं कि पीटीआई ये सोचते थे कि कहते थे ना जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। किधर है वो अब? कहाँ हो रहा है डिफॉल्ट? उल्टा सरमायादारी आ रही है ना। सायरा बानो साहिबा याद करवा रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो ये बयान दिया था कि बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था सऊदी अरब के अंदर से, सऊदी अरब के साथ जो पैकेज अब मिला है उसकी ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उसकी क्या वजह है? IMF क्यों इतनी इनसिक्योर है? इन्हीं की वजह से इनसिक्योर है। इन्होंने ही सारे मायदे तोड़े थे। IMF ने तो नहीं तोड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 4.25 साल में क्या किया? मुझे ये समझाया जाए कि 4.25 साल में क्या किया। कराची शहर में 14 सीटें इनको दी, सो गए थे इनके MNAs, हार गए थे इलेक्शन। इनको उठाया गया कि उठो बेटा तुम्हारी सीटें पक्की है, चलो जाओ। अच्छा इस तरह से 14 सीटों के अंदर कराची शहर के अंदर इन्होंने कोई काम किया। पंजाब में इनको अक्सरियत, शेख साहब मुस्कुरा भी रहे, शेख साहब से पूछते हैं इन तमाम के जवाब। अगर इनको मिली है चले, इन्होंने पंजाब में क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम की? अब इनके केसेस जो निकल के आ रहे हैं, हाजी उस्मान बुजदार साहब प्लस टोपी एंड तस्बीह की जिनकी दुकान है, उनसे जरा पूछा जाए ना कि उनकी जो करप्शन के केसेस अब खुले हैं जो आज निकल रहे और नैप और एंटी करप्शन के पीछे पड़ी है, तो वो क्या है सब ये? अच्छा, KPK के अंदर इन्होंने वो तो हर दौर में पढ़ते हैं ना, यही तो हल्दी है शाह साहब। जो ऑपोजिशन में होता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है गवर्नमेंट, और ये हर कोई यही है। जो गवर्नमेंट के साइड पे है वो मजे करते हैं, फिर उनकी बारी बाद में आती है। ये तो एक अलमिया है ना इस मुल्क में, साबित कभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना पिछले दौर में और ना अभी कोई चीज सामने आ रही है। शेख साहब आप कोई जवाब फरमाइए। आपके लोगों को उठा के बताया गया कि भाई जागे, आपके 14 MNAs जीत गए कराची से, शहर कायद से, इसका जवाब फरमाइएगा। और दूसरा
ये जो खान साहब की टांग पर जो दबाव है उसके ऊपर भी हुकूमत मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, और माजी में भी इमरान खान साहब के इन्हीं तरह के जो रीजंस थे अदालत में पेश ना होने के, उनको भी गिनवाया जा रहा है। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है आज ही कि टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता, ये उन्होंने सवाल किया है, या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है, ये भी सवाल है। ये बहुत मुख्तसर सवालों पर मबनी ट्वीट है मरियम साहिबा का, इसका जवाब है कोई शेख साहब? मैं पहले मरियम बीबी का आपने जो सवाल किया मैं उस हवाले से जवाब देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब से मेरा नहायत ही एहतराम का, मोहब्बत और खलूस का रिश्ता है और बड़ा अदब का रिश्ता है, और भाई है मेरे और बड़ा करीबी रिश्ता है। मैं बसद एहतराम इख्तलाफ करते हुए कोई इनकी बात का भी जवाब देना पसंद करूंगा, मगर बात वही है कि मेरे भाई हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्हें कायल कर सकूं। बात यह है कि जहां आपने मरियम बीबी का जिक्र किया, उन्हें टांग पे एतराज है, मैं समझता हूं कि मरियम बीबी ट्वीट पे अपना वक्त और अपनी एनर्जी इसलिए जाया न करें कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ रहे, अदालती मफरूर है इस वक्त, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में कोई डॉक्टर बैठा कह रहा है कि ये लंदन में सैर करने के लिए, उमरा करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, कश्ती ईरानी का जो है वो शौक पूरा करने के लिए लंदन में वो फिट है, मगर वही डॉक्टर जो है वो लिख देता है कि नहीं जी ये वहां वापस अदालत में जाने के लिए फिट नहीं है। तो इस मुल्क की अदालतों और आपके तमाम वर्कर्स ने ये बात मान ली ना कि भाई ठीक है जी, वो डॉक्टर कह रहे हैं तुसी नहीं आना, तो फिर आप मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की टांग का जो प्रेशर है ना, वो फिर आप डॉक्टरों पे ही छोड़ दें। जे तुसी उमरा करके आ सकते हो और लंदन सारा फिर सकते हो, और डॉक्टर अली भी तो पाकिस्तान नहीं आने देता, तो ठीक है, अगर वो इतना काबिल डॉक्टर है तो किसी डॉक्टर ने ये भी कहा होगा कि आप 10 दिन के लिए रेस्ट करें। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त अपने बंदे यहाँ से 50 रुपए के स्टाम पे इलाज कराने के लिए गए हों और इतनी दफा वज़ीर आज़म रहे हों और मुल्क में इनका इलाज कोई ना कर सके, तो फिर ऐसी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, ये नामुनासिब बात है। मैं ये समझता हूँ तनकीद दोनों तरफ की जायज है जी शेख साहब, तनकीद दोनों तरफ की जायज है, लेकिन आपसे एटलीस्ट आपसे भी ये तनकीद पूछी जा सकती है ना कि चले आप उनका गिनवाते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स गिनवाते हैं कि जी आप भी बहाने बना रहे हैं, लेकिन ये बात है कि खान साहब एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? अगर वो नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं तो वो खुद मिसाल बने ना। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ओपिनियन डॉक्टर पे छोड़ देनी चाहिए। अगर अच्छा, हमने अपनी अपोजिशन सही है, लेनी है वो फैसला कर लेंगे भाई कौन वो है आगे। अगर अदालतों में पेश होने के फैसले डॉक्टरों के ओपिनियंस पे हो रहे हैं तो हमने तो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज और दूसरी बात है, इमरान खान को सजा नहीं हुई है, इमरान खान बेल्स लेने के, इमरान खान ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, और ये उसका किसी भी आदमी का इस्तेहकाक है। वो अदालतों में जाते हैं, पेश होते हैं, उनकी लीगल टीम वहां पे मौजूद है, 10 दिन बाद वो दोबारा पेश होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ट्रायल शुरू हो गया और जमानत से आगे की बात हुई तो बात हो जाएगी। तो, लेकिन शेख साहब ये इतनी तो गुजारिश सही है ना कि ट्रायल इसी वजह से शुरू नहीं हो रहा क्योंकि पेशियां वक्त पर नहीं हो रही, क्योंकि अगर पेशियां होती और जैसे बाय द स्केड्यूल चलते तो गालिबन ट्रायल काफी पहले का शुरू हो चुका होता। ऐसे उस दिन खान साहब हाईकोर्ट में पेश हुए तो जजों ने इस्तीफा किया, जजों ने कहा कि यार एक आदमी जिसपे जिंदगी में कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, आज आपने उस पर 150 से ज्यादा FIRs कर दी है। एक इंसान है, कोयटा, कराची, मुल्तान, लाहौर, कितने जिलों में, वो जिन तो नहीं है, वो इंसान है, वो जहां जहां पहुंच सकता वहां पहुंच रहा है, जहां नहीं पहुंच सकता वहां उनके वकील पहुंच रहे हैं, या तो हमारे वकील अदालतों में पेश ना हो रहे हो, सही है, तो वो ह्यूमनली उनके लिए पॉसिबल है, वो वहां कोशिश करके पहुंच रहे हैं, नहीं भागते, कहीं नहीं भागते, मुल्क के अंदर बैठे हैं, कोई एफिडेविट साइन करके नहीं जाएंगे बाहर से इलाज करने। सही है, ये ऐसे ही बैठे ने ये तसल्ली दे दी है हुकूमत को शेख साहब ने कि कहीं एफिडेविट साइन करके नहीं जाएंगे और मुल्क में बैठे हैं, जो कि फैक्ट भी है, एक रियलिटी भी है। शेख साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप अगर मुकम्मल कर लें जल्दी, मैं फिर ब्रेक पे जाऊं जी। दो बातें मैं बताना चाहूंगा, देखें ये शेख साहब कैन यू अलाउ मी, मैं ब्रेक के बाद आके आपके ये पॉइंटर्स कलेक्ट करूं ताकि हमारा ये ब्रेक की बाइफर्केशन ठीक हो टाइम के हिसाब से। मैं नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक मैं शेख साहब के ऊपर ही जाऊंगी ताकि वो जो मौलाना साहब और यकीनन कुछ पॉइंटर्स थे जिनके जवाब वो फिर फरमाएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब आप जो बात फरमा रहे थे आप मुकम्मल कीजिएगा ब्रेक से पहले। आप मौलाना साहब की कुछ बात पे, कुछ पॉइंटर्स पे अपना जवाब दे रहे थे।
लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की तरफ शायद खाकान अब्बासी ने इशारा किया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जिस हुकूमत का हिस्सा हो और जिस हुकूमत के मातहत हो, जब वो करप्शन करती है तो वो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है। ये मेरा या मोना या आपका या शायरा बानो साहिबा का जिम्मेदारी नहीं है कि चेक करना भी कौन सा एसी, कौन सा डीसी और कौन सा पैसा। ये मेरा और सारा बानो साहब का या आपका इनका काम नहीं कि हम चेक करें भी कौन सा तहसीलदार कितने पैसे खा रहा है, किसने पटवारी ने कितनी बोरियां दी और कितनी नहीं दी। ये बहुत सही बात है। सरकार गवर्नमेंट का जो बड़े शौक से आके बैठती है कि असी महंगाई मुका छड़ांगे, असी इस मुल्क की बेहतरी ले आवांगे। आप बेहतरी ले, आप एक तकसीम जो है वो 5% इस मुल्क के लोगों को आटे के थैले की तकसीम शफाफ नहीं कर सकते। और आप शफाफियत की नहीं शेख साहब, अभी शाह साहब ने तो एटलीस्ट इतना तो कहा ना, उन्होंने ये तो कहा कि चले हुई है लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हुई है। वहां दूसरी तरफ जो PMLN इटसेल्फ है वो तो कहते हैं ये हुई ही नहीं है। ये सरासर गलत इल्जाम है क्योंकि शायद खाकान साहब अभी पार्टी से नाला है। नहीं, शायद खाकान साहब बिल्कुल पार्टी से नाला कोई नहीं है। वो ओपनली कह चुके हैं कि मैं नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। मगर एक आजम के उहदे से जब आ जाता है तो कोई ऐसी एम्बिशन बात नहीं रह कोई जाती है। अब उसको कोई डर नहीं है किसी का। अगर वो हक और सच की बात करता है तो बात मान लेनी चाहिए। कोई मौत नहीं पड़ती है सच बात मानते हुए, और ये नून लीग मान लेनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल बीवी ने बिल्कुल ठीक बात की कि शायद वो फिगर कम ही बता रहे होंगे, क्योंकि फिगर इससे बहुत ज्यादा। आप देखें ना, हालात इनकी गवर्नमेंट ने ये कर ली है कि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था GS ग्लोबल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 के अंदर ये जो डीजल की सेल है वो हाफ हो गई है इस मुल्क के अंदर, और ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के साथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के और इंडस्ट्री के साथ ये जो है वो मंसूब है। टायर्स की जो सेल है ट्रॉलर्स के इस मुल्क के अंदर, वो भी अप्रैल 23 के अंदर GS ग्लोबल के मुताबिक वो हाफ हो गई है। आप ये देखें कि 91% लोग, एक नई रिपोर्ट स्टीव हॉक कह रहा है कि वो अंडर स्ट्रेस है जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो 62% से ऊपर चली गई है। जी 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 बिल्कुल। ये इन लोगों ने महंगाई मुकाने के लिए मार्च किए थे। ये तो इमरान खान को मुकाना चाहते थे, इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे। चलो इरादा दार लग गया, ना जान छुड़ा ली फॉर टाइम भी, मगर अब जिस वादे और जिस चीज के ऊपर आए थे वो डिलीवर करें। सही है, वेरी फेयर। आप कहते हैं असल जान छुड़ानी थी इन्होंने इमरान खान साहब से और वो इन्होंने छुड़ा ली, और अभी शायद है ना, जो डॉलर की बात हो रही, मुझे आप ये बताए इसहाक डार साहब ने कौन सा तीर मारा? हाँ सही। वो जी IMF के बारे में बड़ा हीरो बने थे इसहाक डार साहब। मैं आवागा थे IMF भी ठीक हो जाएगा, मैं उससे मुआहदा करूंगा, मैं उनसे आंखों में आंखें डाल बात करूंगा। आंखों में आंखें डाल के अगले तो आंखा खोलनी को नहीं देती, उन्हें तो खड़ोनी नहीं देता, बहन ही नहीं देता उससे। वो जितने हीरो बन के लाए थे उस मिफ्ता इस्माइल को भी गंदा किया सिर्फ इसलिए कि इसहाक डार को वापस लेके आना था, हीरो बनाना था। कल वैसे शेख रशीद साहब ने हमारे पास ये इंकशाफ किया है कि अभी भी जो सऊदी अरेबिया से और जो दुबई से जो भी इनको अश्योरेंस मिली है उसके बावजूद IMF इनको कोई गो अहेड नहीं देने वाला है। शाह साहब वैसे इसकी बात तो कर रहे थे, मैं इसका जवाब उनसे मांगती हूं कि क्या वाकईतन इस इंकशाफ में कोई वजन हो सकता है। लेकिन सायरा साहिबा, ये तमाम बातें अपनी जगह, फवाद साहब और जाहिर है दीगर भी PTI के लोग फिर भी मुज़ाकरात तो कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट से चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो क्या ये इलेक्शंस मामले का हल है? इलेक्शन से मसला हल हो जाएगा? आम आदमी का मसला आखिर किस तरह से हल होगा? PTI कहते हैं इलेक्शंस करवा दें। शेख साहब से भी पूछेंगे कि क्या ये पर्ची या जो ये नुस्खा है ये दुरुस्त है? तो देखिए, वो जो इलेक्शन होते हैं वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी मतलब लोगों के लिए छलनी का काम करते हैं कि सही चीज ऊपर आए। तो इलेक्शन तो होने चाहिए। ये जो अभी आइन की गोल्डन जुबली मनाई और कल भी आइन पे ये लोग अपने कल्ले पाड़ रहे थे, तो बंदा इनसे पूछे चले बुनियादी हकूक तो छोड़े, अवाम तो है ही नहीं ना, कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या 90 दिन के जो इलेक्शन की शिक है वो पूरी की है जो आप आइन की बात कर रहे हैं? और इलेक्शन में इनको मसला क्या है? मसला नोट का नहीं है कि पैसे नहीं है, मसला है कि इनके पास वोट नहीं है। इनको समझ नहीं आ रही, ये ग्राउंड पे उतरे तो ये लग पता जाए। देखिए ग्राउंड रियलिटी, अब मैं भी किसी को PTI ना पसंद हो, किसी को इमरान खान ना अच्छा लगता हो, किसी को फवाद चौधरी ना, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त जो अवाम है वो एक PTI के नजरिए के साथ खड़ी है। हम 75 साल इंक्लूडिंग मी, मेरी भले अपनी पार्टी है बट मैं फेडअप हो चुकी हूँ ये शक्लें देख के, वही बयान देखकर। 52 साल पुराना अखबार उठा ले, चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों भाई? मतलब आप ये करें, यहाँ पर ये आते हैं, वहां पर कल बातें चल रही थी, एक मतलब उनका सर ना पैर,
बार बार यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल देते, तो यूसुफ रजा गिलानी जब फहमीदा मिर्जा ने रूलिंग दे दी कि ये अदालती हुक्म या ये गैर आईनी है, जी। तो उस वक्त ये चौधरी निसार गए थे उसकी तशरीह करवाने। ये खुद तो कोट पहन के मियां साहब पहुंचे हुए थे मेमो गेट उस पे। मतलब आप आज अगर ये शेरो शकर हुए तो इनका सारा, तो क्या अदालती निजाम 75 साल से खराब नहीं था? अदालत के फैसले की वजह से तो ये हुकूमत में आके बैठे हैं। अगर उस रात अदालतें ना खुलती और यही चीफ जस्टिस जो इस बेंच में थे, अतर मिन्नल्ला साहब और ये अदालतें उस रात जो खुली हैं, आपको लगता है नहीं खुलना चाहिए था? नहीं, बस वो हो गया था, ये तो सबको नजर आ रहा था ना। देखें, अगर आप उस नजर से देखें कि सही हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो शब खून मारा गया ना। ये तो इन्होंने आना था, इनकी तो वो कहते ना कि आंखें खुल गई अपने अपने, इनके वो मुफादात जब इस वक्त हुए कि ये कि आके इन्होंने किया क्या आवाम के लिए, आके नैब इन्होंने तरमीम की, इन्होंने ईवीएम खत्म किया, इन्होंने ओवरसीज खत्म किया, अपने केसेस खत्म किए, ये गंगा नहाकर यहाँ पर बैठ गए। एयरफोर्स के जहाज में डार साहब को लाया गया कि आके आप ये मईशत को देखें। उससे पहले ये अपने डॉलर्स भिजवा चुके थे, 180 पे डॉलर इन लोगों ने गायब किया। इनके तो बारे न्यारे हो गए। ये जो ये जो एयरपोर्ट पर जहाज उतरे इंडिया के यके बाद दीगरे कि उसमें टेक्निकल इश्यूज थे, 12 अफराद गए हैं, किसी ने पूछा उनसे कि उन जहाजों में क्या गया था? तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं? मतलब मैं अवाम में शऊर आ चुके हैं। अगर आप किसी गांव में भी जाकर पूछेंगे ना, किसी गांव में जिसको नहीं भी पता होगा, पेट में रोटी भी नहीं होगी, वो भी आपको ये तज्जिया बता देगा। ये बात है। अभी शाह साहब कह रहे थे आईएमएफ के साथ अगर बात बिगड़ रही है तो वो पीटीआई बिगाड़ रहे हैं, और वो कुछ ऑडियो लीक्स और वो फोन कॉल्स जिसमें कहा जा रहा था कि जी हम इनको लिख के देंगे कि हम अपने सूबाई बजट से हम कटौती नहीं करेंगे वगैरह। एक तो ऑडियो लीक्स ने दिमाग खराब किया हुआ है कि मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कि अभी आइन की तकरीबात में हम देख रहे थे गांधी के खतूत, इलामा इकबाल के खतूत। तो हम आने वाली नस्लों को क्या करेंगे? इसकी ऑडियो, इसकी वीडियो, ये ऑडियो लीक करता कौन है? इसकी रिकॉर्डिंग होती कौन है? ये फोन क्यों सेफ नहीं है? अब तो सुने व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करो। मतलब ये कौन है? अगर आपको पता है जिन्होंने इतना मुहब्बे वतन होकर ये ऑडियो लीक्स और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो लटकाए ना। साकिब निसार की जो ऑडियो आई है, अभी मैं रिसेंटली उसकी बात कर रही हूँ, कमेटी बन गई असेंबली में, तो अरे भाई उसको दे सजा। अगर गलत है एफआईआर दर्ज करवाएं। मतलब आप असेंबली सिर्फ आवाम के काम नहीं होंगे, आलतू फालतू जितनी चीजें हैं वहां पर हम लोगों के वहां पे ये सारा होगा। अगर साकिब निसार के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है तो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की भी बनाए, उनकी भी तो वीडियो है ना, जो सेनेट इलेक्शन में जो ये कैप्टन जमील और फहीम खान जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उनका भी कहा था। मतलब मुझे इनकी समझ नहीं आती। मतलब लेकिन वो तो उन्होंने लीक की थी ना सायरा साहिबा, वो भी गलत हुई ना? नहीं देखिए, मतलब ये कह रहे हैं ना कि अगर उस पे एक कमेटी बना दी है उन लोगों ने, तो वो फिर बाकी सब चीजें दूसरों पे भी बना ले, जो इनके लिए सही है। अब कल एक खान साहब की उस बात पर हो रहा था जो एक बच्चे ने बोला था, बहुत गलत बोला, उसी वक्त बोला था, लेकिन उसको ऐसे उछाल रहे थे। मरियम साहिबा ने क्या बोला था? नाउज बिल्ला, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु की मिसाल देने के बाद अपने और अपने अब्बा की मिसाल देना शुरू हो गई। राना सलाउना ने कहा कि नवाज शरीफ को देखना हज करने के बराबर है। सायरा रफीक तारड़ का भी ऐसा बयान था। ये अपना भूल गए, इतनी ढिठाई से बैठे हुए होते हैं कि आप यकीन नहीं करें कि मैं समझ रही थी कि शायद मेरा जिंदगी में बहुत तजर्बा हो गया, मैं शायद उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, लेकिन अल्लाह माफ कर दे, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए कि आप भी समझने से काफिर है, आपको समझ नहीं आती। समझ नहीं आती कि ये कौन लोग बैठे हुए। शाह साहब से वैसे पूछना ये बनता है, लेकिन ये बात भी है शेख साहब, अभी इस तरह के अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बयानात आपके कोई कारकुनान में से या कोई मासूम बच्चे दे रहे हैं, तो एटलीस्ट ये कि उनकी हौसला अफजाई तो लीडरान को नहीं करनी चाहिए ना। ये एक बड़ा एक आपके ऊपर भी ये तनकीद आ रही है कि आप इस तरह की चीजों को एंजॉय करते हैं, और इमरान खान साहब गोया ये उनके जो मुखालफीन है, ये क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि वो भी अपनी खुद पसंदी में मुब्तला रहते हैं। नहीं, गलत बात है। खान साहब ने कोई ऐसी पजीराई नहीं की, मैंने वो वीडियो देखी है। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको चाहिए था कि उस बच्चे को बाद में कान पकड़ वहीं रोकते। जी, जैसे फैसल जावेद साहब थे और कासिम सूरी भी खड़े थे। आपको नहीं करना चाहिए, हो सकता है इन द स्पर ऑफ द मोमेंट वो ये ना कर सकते हो, मैं ये समझ तो करना चाहिए था। बट जैसे कह रही है मैं क्या, उसका ये मतलब है भी तुसी उन्होंने सीधा इमरान खान दे नाल गुस्ताखी इस्लाम दे नाल मंसूब कर दे। मैं इंसान इमरान उस तकरीर कराइए, और जो इन्होंने मिसालें दी वो बिल्कुल ठीक है। असेंबली में मेरे सामने कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि जिसने मियां नवाज शरीफ का नाम लेना है वो वजू करके आए, पहले वजू करे, उसके बाद वो जिक्र किए। कैप्टन सफदर साहब का एक और बयान है, उन्होंने कहा एक तरफ वो मियां नवाज शरीफ की बेटी है, दूसरी तरफ हजरत अली के खानदान की बहू है।
मतलब आप कौन कौन सी चीजें अल्लाह माफ कहाँ- करे, कहाँ नाउजुबिल्लाह, पे बहुत नामुनासिब बयान दोनों इतराफ से। हाँ, जी उनके जी। पाँव की धूल भी नहीं है। हाँ, बेशक। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, जो गलत बात करे, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जज्बात में करे या किसी और एजेंडे पर करे, उसको करना चाहिए, मना करना चाहिए। उस बच्चे ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਉਸੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ बेटा आप ये गलत कर बैठे, उसकी अम्मा को आपको ये आइंदा खत्म हुई जवाब। ये इतनी सी बात थी और वो इसको आगे इतना नहीं उठाना चाहिए था। यहाँ पे एक और, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने मुझसे पूछ लिया, यहाँ पे जजों के हवाले से बात हुई और कहा कि जी वो उन्होंने उस वक्त बोरे लगाई थी और वो पिछले जजों ने क्या किया। जी जी मैं जी। सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि उन सारे जजों के, उन पीसीओस के बाद क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं आई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई? क्या आर्टिकल 6 लगाना फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है? क्या आइन ये नहीं कहता कि फेडरल गवर्नमेंट ही मुद्दई हो सकती है आर्टिकल 6 के लिए? तो क्या जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को कौन सी चीज सूंघ गई थी जिसकी वजह से वो इन जजों के ऊपर आज तो बोल रहे हैं, उस वक्त नहीं बोले? ख्वाजा आसिफ साहब को आज तो वो जज याद आ रहे हैं, उस वक्त याद नहीं। लेकिन शेख साहब इसमें थोड़ी डाइकोटमी है, मैं अर्ज करूं, बल्कि मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप इसका प्लीज जवाब फरमाइएगा। जैसे काजी फायद ईसा साहब पे भी तो किया था ना रेफरेंस खान साहब की गवर्नमेंट ने, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट गई है तो वो अपने उसी फैसले से वो पीछे भी हटे हैं और उन्होंने कहा है कि उनको किसी की तरफ से डिक्टेशन दी गई थी, वरना वो खुद साख्ता तो नहीं करना चाहते थे। और अभी भी हम यही सुन रहे हैं कि ये जितने जजेस के ऊपर, जनरल्स के ऊपर इख्तलाफात हैं, जैसे बाजवा साहब का कई मरतबा अभी भी इमरान खान साहब ने नाम लिया है कि उन्होंने हमें किस तरह से मिसगाइड किया। तो आप क्या समझते हैं या क्या उम्मीद रखी जाए कि अगर ये प्रिंसिपल्ड बातें आ रही हैं पीटीआई की तरफ से, तो जब अगर आप गवर्नमेंट में वापस आते हैं आप कोई एक्शन लेंगे इन जनरल्स पर? आफ्टर द ब्रेक इसका जवाब फरमाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस बात का जवाब फरमा दे शेख साहब, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। सायरा साहिबा ने भी इस पे बात कर दी है ऑब्वियसली, कि क्या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जाए। और एक मेरा अर्ज है कि अभी जो खान साहब ने इस हवाले से कहा है ना, वो एग्जैक्टली सुन ले, क्योंकि उन्होंने अपना जो इल्जाम है और अपना गिला शिकवा दोबारा दोहराया है, और बल्कि ये कहा है कि एक दफा नहीं 2 दफा जनरल बाजवा ने उनको कहा कि भाई आप असेंबली तोड़ दें अगर इलेक्शन चाहते हैं तो। खान साहब की बात देखिए, 2 मुलाकातें हुई बाजवा से, ठीक। दोनों मुलाकातों का मकसद क्या था? इलेक्शन करवाओ। बाजवा ने हमें एज यूजुअल लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि हाँ इलेक्शन मैं करवाता हूँ। सब झूठ, कोई इनकी इंटेंशन नहीं जी, झूठ बोला गया, लाल बत्ती के पीछे लगवाया गया बाजवा साहब के ऊपर, मजीद ये इल्जामात हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज होगी अगर आप वापस पावर में आते हैं, कोई एहतसाब होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसी को ये मशवरा देना है कि तुम असेंबली तोड़ दो, ये आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं है। अभी भी मशवरे के ऊपर ही असेंबली तोड़ी, ये बात नहीं है। कल खान साहब क्या करेंगे, कब करेंगे, ये जब वक्त आएगा खान साहब खुद फैसला करेंगे। ये फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस इट इज टू अर्ली टू आंसर राइट नाउ। कि कल ये हमारी जमातों का इशू ये है कि जब अपोजिशन में हम हो तो वो बड़े बड़े नारे मारेंगे और की होएगा तो क्या कर देंगे तो वो कर देंगे। दुरुस्त बात। मेरे ख्याल में कहते हैं व्हेन विल गेट देयर विल क्रॉस द ब्रिज। जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे जो पार्टी लीडर मुनासिब समझेंगे। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे एक मौका दे दें, ये है कि मैं अपने पीडीएम के भाइयों की किसी बात को ना सीरियसली लेता होता। पीडीएम से मुराद मैं लार्जली नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ। इनकी बात को आप संजीदा ना लिया करें, क्योंकि मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन और हमारे से पहली जनरेशन को इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के बारे में बताया कि ये चोर है। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे मियां साहब की पार्टी चोर है, मियां साहब की पार्टी वाले अगले कई साल कहते रहे कि जरदारी साहब चोर है। इन दोनों ने हमें मिलकर बताया कि मौलाना फजलुर रहमान चोर है। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि ये दोनों घर बहुत बड़े चोर हैं। अब ये सारे जो एक दूसरे को पिछले 30-35 साल से मेरी और आपकी और उससे पिछली जनरेशन के सामने एक दूसरे को एक्सपोज करते रहे हैं। किसी ने गाड़ियां कौमी असेंबली के सामने लगा दी, किसी ने नैब के केसेस लगा दिए, किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दिए। ये सब एक दूसरे के बारे में हमें कहते रहे कि सारे चोर। किसी ने कहा कि मैं पैसे गर्दन में से और गले से बाहर निकाल लूंगा। किसी ने कहा कि मैं बहिरा अरब में उठा के फेंक दूंगा। और उस बाद चूंकि शाह साहब है नहीं तो मुझे जरा उनका काम भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये कि अगर वो होते शेख साहब बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जाहिर है गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो चूंकि इस वक्त है नहीं, तो मैं इसलिए उन्हीं की बात एक करते हुए ये कहती हूँ कि वो लोग भी तो फिर आपको आपके एलाइज के खिलाफ बयानात माजी के याद करवाते हैं। से फॉर इंस्टेंस परवेज इलाही साहब, शेख रशीद साहब।
इमरान खान की हुकूमत को बने कितने साल हुए हैं, इमरान को सियासत करते हुए कितने साल हुए हैं, 3.5 साल की हुकूमत के होते तो इस टाइम कितनी बारी सूली ते लटकाना दे। सायरा साहिबा जिन्होंने- आपसे इख्तलाफ कर रही हैं बड़ा बरमला तौर पर। नहीं, उनका एहतराम है, मैं इनको सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करती हैं। जी बिला शुक्र। उनका मैं एहतराम के साथ ये कहूंगा कि जिनकी 35 साल की हुकूमत है उसको आप 3.5 साल वालों के साथ कितना को कंपेयर करके कितना सूली पे चढ़ा लेंगे। अच्छा, बस इस वजह इलेक्शन- से आप कहते हैं कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि ये लोग ज्यादा टाइम रहे हैं, आप लोग निस्बतन आपने बहुत बहुत महदूद कम टाइम गुजारा है। लेकिन सायरा साहिबा को इस वजह से भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि आप लोग तो सर असेंबली में ही नहीं है, वो आपका भी काम उनको करना पड़ रहा है। जी सायरा साहिबा, आपका इख्तिलाफ क्या था? इन्होंने कहा जा शुक्रिया। हाँ। ठीक है, खान साहब का तजर्बा नहीं था, लेकिन खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, उमर अयूब, गुलाम सरवर, जिसका भी उनका माशाल्लाह हर पार्टी का और 30 से 40 साल तजर्बा है। मोहम्मद मियां सोमरा उठा लें, फखर इमाम उठा लें, ये कर लें, ये सब बहुत तवील फहरिस्त है। तवील हाँ। वो तजर्बाकार लोग थे। हाँ, तो अब इन तजर्बाकार टीम के और साथ भी माशाल्लाह एक तजर्बा और चाहिए, तजुर्बाकार शेख वकास साहब भी साथ हैं खान साहब के, तो I इतना hope कि ये तजर्बा वाली- चाहिए तो वो ये वाला उसके बहाना ऊपर खान साहब ना काम बने। करें। हाँ। तो बाकी 4 हफ्ते नहीं, आपको 4 हफ्ते हुए, लेकिन साथ शेख अब आप आएंगे, रशीद, अब उमर जो अयूब, गवर्नमेंट आएगी तो अब तो आप होंगे ना शेख साहब माशाल्लाह जी। और वो माजी की भी गिनवा रही हैं कि और कौन कौन से लोग थे, बहुत वो तवील सब थे, फहरिस्त सब बहुत नहीं, वो सीनियर ठीक कह रही है। शेख सब इधर उससे मतलब अपने मतलब जैसे सारे सीनियर थे। हाँ। फिर आपका दूसरा सवाल भी जो हाँ। खान साहब के उस ट्वीट के ऊपर, जी आप अगर करना चाहें जवाब तो जरूर, अगर आपके पास कोई बात है उस पे कहने को। नहीं आप अभी ये बाजवा साहब की बात कर जी रही जी, थी ना, बाजवा तो साहब के हवाले से कि वो अगर कोई एहतसाब करेंगे या नहीं करेंगे, वो लेकिन वो इतना बड़ा शेख साहब काम ने हो कहा गया था, हुकूमत इधर से उधर हो गई, उस नशिस्तों से उठ के हम उधर चले गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। उसके बाद भी बाजवा साहब के फैसले पे अमल करना था या उनसे मशवरा मांगना था कि असेंबलियां तोड़नी है या नहीं नहीं तोड़नी। तोड़नी। हाँ, उनसे सोच विचार, ये तो वैसे बड़े सोचने की तो बात बहुत है, है। अब भी उन तब से उनसे मशवरा करना था। हाँ। अभी पिछले दिनों कोई एक क्लिप चल रहा था, उसमें मतलब सब ये काफी हमारे एंकर्स कह रहे थे जी ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ। भाई कोर्ट मार्शल नहीं, फ्री एंड फेयर ट्रायल का वो आपको देना चाहिए, वो चांस क्योंकि देना जो चाहिए। ठीक फैसला है। हुआ था जाहिर है वो फर्दे वाहिद का नहीं था। यकीनन। अगर फर्दे वाहिद का था जाहिर है कोर्स उसमें क्या वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा नहीं था। हाँ। और सबसे बड़ी बात बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन हम एक्सटेंशन में शामिल थे। बहुत सही बात है। नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। यकीनन इसके ऊपर कोई और नशिस्त में बात जरूर होनी चाहिए। थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।